हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए दीपिका सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएन बेस्ड नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एन वेरी नियर अपकमिंग आईपीओ ऑफ एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है फ्रेंड्स 1 नवंबर 2021 को। और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 3 नवंबर 2021। फ्रेंड्स, ये जो इशू है वो बुक बिल्ड आईपीओ रहेगा और इन शेयर्स की वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो रहेगी ₹10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है 531 से 542 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट जो है फ्रेंड्स वो रहेंगे 27 नंबर ऑफ शेयर्स के, जिसमें मिनिमम लॉट अप्लाई कर सकते हो 1 के, जिनके अंदर रहेंगे 27 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि अमाउंट करेगा 14,634 रुपीज। मैक्सिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स 13 के, जिसके अंदर रहेंगे 351 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि अमाउंट करेगा 1,90,242 रुपीज। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 800 करोड़ के, और ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल रहेगा ऑफ 800 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो ओरिजिनली एज अ पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट हुई थी एस एसजीएस एंटरप्राइजेस इन जून 1987। सब्सिक्वेंटली जून 2005 के अंदर एसजीएस एंटरप्राइज जो है वो रजिस्टर हुई एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन द नेम ऑफ एसजीएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। सब्सिक्वेंटली जून 2021 के अंदर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इसका नाम हो गया एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। Company is one of the leading players in Indian decorative aesthetics industry in terms of revenue in financial year 2020 and as it 31st March 2021, which offered the widest range of aesthetic products in India. Company as it 31st March 2021 offered the widest range of aesthetic products in India. It is a design to delivery aesthetic solution provider with the ability to design, develop and manufacture a diverse product portfolio. Company cater to the requirements of two-wheeler, passenger vehicles, commercial vehicles, consumer appliances, medical devices, farm equipments and sanitary ware industries. Company differentiate itself on the basis of wide range of its product portfolio, quality of its product offerings, its product design and development capabilities, and the strength of its relationship with customers located across various industries globally. अब फ्रेंड्स, जानते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में। इट इज अ लीडिंग एस्थेटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर विद एन एक्सटेंसिव suite of premium products in a growing industry. It has strong manufacturing capabilities supported by an established supply chain and delivery mechanism. It has a strong innovation and product design and development capabilities. It has a long-standing customer relationships. It has a strong financial position and a track record of financial performance. It has an experienced and qualified management team. बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो है कंपनी की वो ये कहती है कि इट leverage market position to capitalize on favorable industry trends, focus on development and introduction of new technologies and advanced aesthetic products, increase its share of business with existing customers and acquire new businesses, increase geographical footprint and increase its exports, integrate its subsidiary and enhance the opportunities, expand its business through strategic inorganic growth opportunities. और फ्रेंड्स, देखते हैं कंपनी के की कस्टमर बेस के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। A well-known automotive original equipment manufacturers such as Suzuki, Mahindra and Mahindra, John Deere, Volkswagen, Ashok Leyland, Honda Motorcycle, Bajaj Auto, Royal Enfield and TVS Motors. Tier 1 automotive component suppliers such as Mirali Western, Brembo and Mindarica. Well-known consumer durables or appliances manufacturers such as Whirlpool, Panasonic, Samsung, Eureka Forbes, Godrej and Liebherr. Medical device manufacturers such as Sensacor and sanitary ware manufacturers such as Gabriet.
तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपनी के की प्रोडक्ट्स कौन से हैं और आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू वो कितना परसेंट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। इट प्रोडक्ट्स के अंदर नाम आता है डिकेल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स, जिसका कि टोटल सेल परसेंटेज अगर हम FY 2020 के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 49.47%। FY 2021 के अंदर है 37.27%। जून 2021 के अंदर है फ्रेंड्स 35.75%। 2D एप्लाइक्स एंड डायल्स, जिसका कि टोटल परसेंटेज जो है ऑफ टोटल रेवेन्यू FY 2020 के अंदर है 7.72%। यही FY 2021 के अंदर है 9.07% और जून 2021 के अंदर है 87.02%। 3D एप्लिक्स एंड डायल्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो FY 2021 के अंदर है 4.18%, जो कि जून 2021 के अंदर हुआ 37.82%। 3D लक्स बैगेजेस की अगर हम बात करते हैं तो FY 2020 के अंदर ये था 24.10%, FY 2021 के अंदर हुआ 20.75% और जून 2021 के अंदर हुआ 18.01%। डोम्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 2020 के अंदर था 2.37% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 2021 के अंदर हुआ 3.05% और जून 2021 के अंदर है 2.90%। ओवरलेस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो FY 2020 के अंदर है 12.43%, FY 2021 के अंदर है 15.64%, यही जून 2021 के अंदर हुआ 16.16%। एल्यूमिनियम बैगेजेस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो FY 2020 के अंदर जनरेट हो रहा था 2.51%, FY 2021 के अंदर हुआ 3.36% और जून 2021 के अंदर हुआ 3.04%। IMLS IMDS जो है FY 2020 के अंदर हो रहा था 0.03%, ये 2021 के अंदर हुआ 1.69% और जून 2021 के अंदर हुआ 2.11%। लेंस मास्क असेंबली 2020 अंदर के अंदर हो रहा था 0.25%, 2021 के अंदर हुआ 3.15%, जून 2021 के अंदर हुआ 4.20%। अगर निकल बैगेजेस की बात करते हैं, निकल बैजेस की बात करते हैं सॉरी, FY 2020 के अंदर हुआ 1.10%, FY 2021 के अंदर था 1.80%, ये जून 2021 के अंदर हुआ 2.97%। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 3 crore 50 lakh नंबर ऑफ शेयर्स। Issued, subscribed and paid up share capital before this offer is 3 crores 4 lakh 37,904 number of shares। प्रेजेंट ऑफर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 8,000 मिलियंस। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है फ्रेंड्स वो स्टैंड कर रहा है 3 crores 94 lakh 11,360। अब फ्रेंड्स देखते हैं शेयर होल्डिंग बाय प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप्स। प्रमोटर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इस ऑफर से पहले प्रमोटर की टोटल होल्डिंग है 98.60%। प्रमोटर ग्रुप की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो होल्ड कर रहे हैं 0.26%। इस तरीके से टोटल होल्डिंग जो है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की वो बनती है 98.86%। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। जैसे कि हमने देखा ये पूरा का पूरा इश्यू जो है वो ऑफर फॉर सेल का ही है। सो अकॉर्डिंगली कंपनी विल नॉट directly receive any proceeds from the offer and all the offer proceeds will be received by the selling shareholders in proportion to the offered sale sold by the respective selling shareholders as the part of the offer। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। टोटल एसेट्स जो थी फ्रेंड्स इन FY 18-19 वो थी 3040.49 मिलियंस, जो कि हुई 3322.55 मिलियंस इन 1920, 3835.44 मिलियंस इन 2021 एंड 4162.36 मिलियंस इन जून 2021। शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स वो है 304.38 मिलियंस। नेटवर्थ की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो इन FY 2018-19 ये स्टैंड कर रहा है 2385.57 मिलियंस पे, जो कि हुआ 2796.50 मिलियंस इन 1920, 3152.16 मिलियंस इन 2021, 3197.61 मिलियंस इन जून 2021।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 18-19 ये जनरेट हो रहा था बाय 2372.52 मिलियंस, जो कि हुआ 2161.73 इन 1920, 2516.16 इन 2021 एंड 742.69 मिलियंस इन जून 2021। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हैं तो इन FY 18-19 ये था 376.01 मिलियंस, जो कि हुआ 412.85 in 1920, 477.65 millions in 2021 and 94.96 millions in June 2021. EPS जो है फ्रेंड्स इन FY 18-19 इट वाज 12.35 पर शेयर, जो कि हुआ 13.56 पर शेयर इन 1920, 15.69 per share in 2021 and 3.12 per share in June 2021. नेट एसेट वैल्यू पर शेयर की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन 18-19 ये था 78.37 पर शेयर, जो कि हुआ 91.87 पर शेयर इन 1920, 103.55 per share in 2021 and 105.05 in June 2021. टोटल बोरोइंग्स जो है फ्रेंड्स इन FY 18-19 थी 232.89 मिलियंस, जो कि हुई 61.70 मिलियंस इन 1920, 92.07 millions in 2021 and 86.38 millions in June 2021. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है फ्रेंड्स इन 18-19 जनरेट हो रहा था 358.27 मिलियंस, जो कि हुआ 582.67 मिलियंस इन 1920, 579.38 मिलियंस इन 2021। जून 2021 के अंदर जनरेट हो रहा था 220.52 मिलियंस। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन चारों पीरियड्स के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है। इन 18-19 443.87 मिलियंस, इन 1920 324.10 मिलियंस, 374.49 मिलियंस इन 2021 एंड 251.44 मिलियंस इन जून 2021। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है फ्रेंड्स वो 89.04 मिलियन जनरेट हो रही है इन 18-19, लेकिन 1920 के अंदर ये नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 181.46 मिलियंस, 2021 के अंदर भी नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 95.93 मिलियंस एंड जून 2021 के अंदर भी नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 115.06 मिलियंस। कैपिटल कमिटमेंट्स अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो FY 18-19 के अंदर था 0.80 मिलियंस, ये 1920 के अंदर ये जीरो हो गया और 2021 के अंदर ये हुआ 4.03 मिलियंस का और जून 2021 के अंदर हो गया 11.89 मिलियंस। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर तीन पोर्शन इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज गारंटी डिपॉजिट्स विद बैंक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लेम टुवर्ड्स फ्री होल्ड लैंड। गारंटी डिपॉजिट्स जो है वो है 0.10 मिलियंस इन सभी पीरियड्स के अंदर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है फ्रेंड्स इन जून 2020 ये एग्जिस्ट कर रहा है एट 8.28 मिलियंस पे। क्लेम्स टुवर्ड्स फ्री होल्ड लैंड जो है वो है 20.40 मिलियंस। प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन जो है फ्रेंड्स 18-19 के अंदर था 15.85%, जो कि हुआ 19.10% इन 1920, 18.98% in 2021 and 12.79% in June 2021. ROE अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो है 15.76% in 18-19, 14.76% in 1920 and 15.15% in FY 2021. ROCE अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन 18-19 वो जनरेट हो रहा है बाय 28.28%, 1920 के अंदर हुआ 26.44%, ये 2021 के अंदर हो गया 31.63%। EBITDA मार्जिन जो है फ्रेंड्स इन FY 18-19 था 27.11%, ये हुआ 31.74% इन 1920 एंड 31.68% इन 2021, ये हुआ जून 2021 क्वार्टर एंड के अंदर 25.03%। और फ्रेंड्स सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं। डोमेस्टिक सेल की अगर हम बात करते हैं, तो FY 2019 के अंदर हो रहा था 90.18%, ये एक्सपोर्ट सेल्स जो था फ्रेंड्स वो था 9.82%। FY 2020 के अंदर डोमेस्टिक सेल जो है वो प्रपोर्शन हेल्ड कर रहा था बाय 85.11%, ये एक्सपोर्ट सेल जो था वो हुआ था 14.89% पे। FY 2021 के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स,
तो रेवेन्यू जो था डोमेस्टिक सेल से वो जनरेट हो रहा था बाय 83.95% पे। ये एक्सपोर्ट सेल जो है फ्रेंड्स वो था 16.05% पे। जून 2021 के अंदर फ्रेंड्स डोमेस्टिक सेल जो था वो हुआ 82.45%, यही एक्सपोर्ट सेल जो था वो हो गया 17.55%। और फ्रेंड्स कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को सर्व कर रही है। कौन से इंडस्ट्रीज है? इट इंक्लूड्स टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, अदर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड अप्लायंसेस। इस इंडस्ट्री के अंदर से कंपनी कितना प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो हम देखते हैं। टू व्हीलर्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन FY 2019 वो जनरेट हो रहा था 69.99% पे, जो कि हुआ 61.29% इन 2020, 58.01% इन 2021, 49.49% इन जून 2021। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो FY 2019 के अंदर था 10.22%, यही 2020 के अंदर हुआ 14.73% एंड 2021 के अंदर हुआ 16.63%, और यही जनरेट हुआ बाय 21.46% इन जून 2021। अदर्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 0.14% जनरेट हो रहा था बाय FY 2019, 0.38% इन 2020, 0.36% इन FY 2021, और जून 2021 के अंदर होता 0.08%। यही हम कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो FY 2019 के अंदर हो रहा था बाय 19.64%, यही FY 2020 के अंदर हुआ 23.61%, FY 2021 के अंदर था 25% एंड 28.97% इन जून 2021। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस, मीन्स कंपनी के अगेंस्ट में, या कंपनी ने कितने लिटिगेशंस फाइल किए हैं, या कंपनी की सब्सिडरी के अगेंस्ट में, या कंपनी की सब्सिडरी ने कितने केसेस फाइल किए हैं प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स अकॉर्डिंगली। अगर हम लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी देखते हैं तो मटीरियल सिविल लिटिगेशन जो है वो एक केस है जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है 12.33 मिलियंस का। टैक्स मैटर्स जो है वो है 6 नंबर ऑफ केसेस जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है ऑफ 20.75 मिलियंस। लिटिगेशन बाय कंपनी जिसके अंदर इंक्लूड कर रहा है मटीरियल सिविल लिटिगेशन, ऐसे 3 केसेस है जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है 27.33 मिलियंस। लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी सब्सिडरी टैक्स मैटर्स जो है ऐसे 12 केसेस है जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है 0.95 मिलियंस का। यही हम प्रमोटर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लिटिगेशन अगेंस्ट प्रमोटर जो है जिसके अंदर मटीरियल सिविल लिटिगेशन जो है वो है 1 नंबर ऑफ केस जिसके अंदर अमाउंट जो है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। लिटिगेशन बाय प्रमोटर्स, तो इसके अंदर 2 केसेस ऐसे हैं जो कि है मटीरियल सिविल लिटिगेशन जिसका अमाउंट इन्वॉल्व कर रहा है 12.33 मिलियंस का। लिटिगेशन अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगेंस्ट डायरेक्टर एक सिविल मटीरियल सिविल लिटिगेशन जो फाइल हुआ है जिसका कि अमाउंट जो है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। और यही हम लिटिगेशन बाय डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 केस है ऑफ मटीरियल सिविल लिटिगेशन जिसके अंदर अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व कर रही है 12.33 मिलियंस का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। आई होप हमारे ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा टू डिसाइड कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे एनालिसिस जो है वो यूजफुल लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और फ्रेंड्स अब आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।